come to next part, details of prokaryotic cell. Let's start with the first one, coverings, glycocalyx. Right? Glycocalyx is outermost. As I told you, here I have drawn glycocalyx, which is of slimy layer type. Remember, rather write down, glycocalyx are of two types. Glycocalyx are of two types. First, slimy layer. Function. It holds water. And protects the cell. From dehydration. Protects the cell from dehydration oblique desiccation. Dehydration oblique desiccation. मतलब सेल के आउटर मोस्ट वॉल स्लाइमी रहेगा. स्लाइमी मतलब म्यूकॉइड, म्यूकस जैसे आपका सलाइवा एंड आपका म्यूकस, राइट? सो इट इज म्यूकॉइड, आउटर मोस्ट कवरिंग जो वाटर होल्ड करता है. Okay, so just imagine that the bacteria is growing in some area where water is available. That slimy layer will absorb the water, hold it, and because of some reason external water is less available. So the cell will be dehydrated and may die. Cell will be dehydrated or it may die. वो कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? सेल को मॉइस्चर पकड़ के रखना पड़ेगा. So सेल को मॉइस्चर पकड़ के रखने के लिए so that it can retain water, it can remain alive for longer period. Okay? So 2-3 दिन उसको पानी नहीं मिला तो स्लाइमी लेयर ने पानी पकड़ के रखा, बैक्टीरिया जिंदा रहा और फिर से उसको वाटर अवेलेबल हो गया. बीच में 2-3 दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, so water was less available. Now again it is available, so बैक्टीरिया सस्टेन कर गया. अगर स्लाइमी लेयर नहीं होता था तो बीच के पीरियड में जब पानी नहीं है तो सेल मर जाता था. Right? So slimy layer is water attracting chemical. It absorbs water, holds it and protect bacteria from drying. Okay? So थोड़ा पानी सप्लाई करते रहेगा. अगर बाद में पानी मिल गया तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, नहीं मिला तो मरना तो है. Right? Okay, so this is what is slimy layer. Write down next point. Second, capsule. You wrote two types of glycocalyx, na? So second type is capsule. It's a tough, rigid structure. Protect from adverse climatic condition. Poisonous chemicals. Right? See now, what are adverse climatic condition? What are poisonous chemicals? Just imagine one bacteria which is disease causing, pathogenic. Imagine a bacteria which is disease causing, pathogenic. Okay? So एक बैक्टीरिया है, right? वो जो डिजीज कॉजिंग है उसके एक बैक्टीरिया ने कैप्सूल बना लिया और दूसरे ने कैप्सूल नहीं बनाया. दोनों को एंटीबायोटिक से एक्सपोज किया. कर लिया. या फिर ऐसे बोलते हैं आपको डिजीज हुआ ऐसे बैक्टीरिया की वजह से जिसने कैप्सूल बना लिया. मुझे दूसरे बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ जिसने कैप्सूल नहीं बनाया. सो कैप्सूल बनाने वाला बैक्टीरिया, राइट, आपके बॉडी में है, आपने एंटीबायोटिक खाया, लेकिन एंटीबायोटिक कैप्सूल की कवरिंग की वजह से सेल के अंदर जाके उसको मार नहीं सकता. Isn't it? Bacteria is protected from poisonous chemical for the bacteria. जो एंटीबायोटिक उसको मारने के लिए आ रहा है, ओके, उससे वो खुद का प्रोटेक्शन कर रहे हैं. Okay, so capsulated bacteria protect against adverse climatic condition. hot temperature है, राइट, एंटीबायोटिक है, पॉइजनस केमिकल है, उससे बैक्टीरिया बच जाएगा. राइट? जो बैक्टीरिया मेरी बॉडी में है जिसको कैप्सूल बनाना नहीं आता,
right? It is unable to produce capsule and had to antibiotic. Okay, the bacteria will be readily killed. Okay, so that is how capsule, right now. Second type of glycocalyx, capsule, outer tough, rigid covering, protecting cell from adverse climatic condition. Right? So that is what is capsule. Cell wall. Right? Cell wall of prokaryotic cell is not cellulose. Right? हमने देखा था ना कि प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है, फंगस की काइटिन नाम के केमिकल से बनी होती है. फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. राइट? वैसे बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है. उसका केमिकल है पेप्टिडोग्लाइकेन. केमिकल का नाम है, आपने ध्यान में रखना है. राइट? और इसमें लिपिड्स भी होते हैं. पेप्टिडोग्लाइकेन लिपिड होते हैं, बराबर. सो सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज डिफरेंट देन सेल वॉल ऑफ यूकैरियोट. Cell wall of prokaryote is different than cell wall of eukaryote. Okay. So as usual, what we studied, that cell wall is protecting it from mechanical injury and help in maintaining shape, size. Prokaryotic cell की वजह से prokaryotic cell का shape, size cell wall की वजह से fix रहेगा, जैसे हमने plants में सीखा था. बराबर. Write down second layer cell wall. Second layer cell wall. ये पॉइंट लिख ही लो, दूसरे लेसन में है लेकिन लिख लो. मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, PEPTIDO, पेप्टिडो glycane, GLYCANE. Cell wall made up of peptidoglycane. Right? Protect cell from mechanical injuries, extreme climatic conditions, and maintains its shape. Okay, so ये हो गया सेल वॉल के फंक्शन. ओके, राइट. नाउ समथिंग वेरी डिफरेंट जो आपके सिलेबस में शब्द है, डिटेल्स कुछ नहीं है. ओके, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, फिर हम फ्लो चार्ट दिखाएंगे. सी, फ्लो चार्ट बनाएंगे. अगर बैक्टीरिया मैंने आपको स्लाइड पे दिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, आई मेड अ स्लाइड ऑफ बैक्टीरिया and give it to you and told you go and watch the bacteria under microscope, you won't be able to focus it. It's so tiny that you won't be able to focus it. आपको कहीं तो भी एक ब्लैक छोटा स्पॉट दिखेगा. आप देखते हो ना, स्कूल में आपने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था, that was 10x and 100x. It was of two types, 10x and 100x. राइट? सो 10x वाला छोटा मैग्निफिकेशन देता है, 100x वाला 100 टाइम्स देता है. लेकिन ये दोनों के नीचे, 10x के नीचे तो बैक्टीरिया दिखता ही, 100x के नीचे भी नहीं दिखेगा. राइट? देयर इज वन एडिशनल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप व्हिच कैन ऑब्जर्व बैक्टीरिया. उस पे भी आप फोकस नहीं कर पाओगे. ओके, सो सी, watching these structures under microscope is really a tough part. That one is colorless. So what is done by scientists? They use good quality microscopes. Along with that, they color the objects. वो सेल को कलर देते हैं. राइट? कलर लेने के बाद वो स्ट्रक्चर आपको डिस्टिंक्ट दिखता है. स्पेसिफिकली टाइप ऑफ सेल आपको स्पेसिफिक कलर से अच्छे से दिखता है. ओके, ये आपने कहां पे देखा होगा? थोड़ा देखो.
9th 10th में आपने जो प्रैक्टिकल किए उसमें आपने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, ऐसे कलरफुल स्लाइड्स देखे होंगे। वो कलरफुल स्लाइड्स में स्टेम और रूट के जो सेक्शंस थे उसमें आपने कुछ सेल पिंक, कुछ सेल लाइट ग्रीन ऐसे देखे होंगे। सो ये पिंक लाइट ग्रीन कलर के जो सेल्स है, ये कुछ सेल पिंक होते हैं, कुछ सेल लाइट ग्रीन होते हैं। ऐसे कैसे? क्या साइंटिस्ट ने एक एक सेल को ब्रश से कलर दिया? ना। देखिए कॉन्सेप्ट सुनो बेटा, कॉन्सेप्ट। स्टेनिंग टेक्निक इज अ प्रोसेस ऑफ कलरिंग द सेल बाय कंसिडरिंग देयर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब सेल वॉल अगर सेलुलोज से बनी है तो उसको रेड कलर जाके अटैच होगा। सेल वॉल अगर लिग्निन की बनी है तो उसको ग्रीन कलर जाके अटैच होगा, पकड़ के रखेगा। हाउ कम? ऐसा क्यों किया? हमने अलग अलग प्रकार के कलर्स बनाए। लिग्निन को एफिनिटी रखने वाला ग्रीन कलर, सेलुलोज को एफिनिटी रखने वाला पिंक कलर, ऐसे हमने अलग अलग कलर्स बनाए जो सेल की केमिस्ट्री समझ के सेल को जाके चिपकते हैं। सेल की केमिस्ट्री समझ के सेल को जाके अटैच होते हैं। ओके, सो देखो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। जस्ट इमेजिन ऑन योर स्टडी टेबल पुट इरेजर, पुट नॉर्मल पेपर, राइट, पुट पेपर विथ प्लास्टिक कोटिंग, राइट। 3 ऑब्जेक्ट है आपके टेबल पे। आपने इरेजर रखा है, एक नॉर्मल पेपर रखा है, एक प्लास्टिक कोटिंग वाला रखा है और एक ब्लॉटिंग पेपर रखा है। इजंट इट? तीनों के टेक्सचर अलग है और तीनों पे आपने कलर डाल दिए। ओके, तो देखो प्लास्टिक कोटेड पेपर कोई कलर नहीं पकड़ेगा। ब्लॉटिंग पेपर कौन से भी कलर को अच्छे से पकड़ के रखेगा। नॉर्मल पेपर कोई भी कलर पकड़ने से थोड़ा, मतलब अगर अच्छा कलर है तो पकड़ेगा, अदरवाइज नहीं पकड़ेगा। Isn't it the type of chemical defines which color has to be attracted, which color has to be held by the structure? So as to observe these cells under microscope, scientists develop variety of colors. Those colors are not only colorful, but they shows affinity to particular chemical. Okay, one stain has affinity for one color, other stain has affinity for other chemical. Okay, so chemical के अनुसार हमने अलग अलग कलर को सिलेक्ट किया, right? So this is also a staining technique in which we use 2 different colors, dye, stain. सेल वॉल को कलर करने के लिए हमने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की है जिसमें हम 2 डाई, 2 स्टेन, 2 रंग यूज करेंगे। एक है ब्लू और दूसरा है पिंक। ये स्टेनिंग टेक्निक सबसे पहले साइंटिस्ट ग्राम ने डेवलप की। क्या नाम बोला मैंने साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट ग्राम। साइंटिस्ट ग्राम डेवलप अ टेक्निक कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग। डेवलप अ टेक्निक कॉल्ड ग्राम ने डेवलप की टेक्निक ग्राम स्टेनिंग। When we stain a cell by this method, discovered by Gram, invented by Gram, we get 2 types of cells. सेल को हमने, आपको मैंने बैक्टीरिया की ग्रोथ दी, आपने 2 कलर डाले, एक आपने ब्लू कलर डाला, एक आपने पिंक कलर डाला। कुछ बैक्टीरिया ब्लू कलर पकड़ के रखते हैं, कुछ बैक्टीरिया पिंक कलर पकड़ के रखते हैं। Are you getting the point? Those who hold the pink color are called gram-negative bacteria, and those who hold the blue color are called gram-positive bacteria. ये कैसे होता है? क्यों? अब देखो, मैंने अभी आपको बैकग्राउंड में एक्सप्लेनेशन में इनिशियली क्या बताया? Color holding capacity of the cell is determined by the chemical present in its covering. सेल के कवरिंग में कौन से केमिकल है उसके अनुसार वो कलर को पकड़ के रखेगा। Some cell have chemical which has affinity for pink stain, pink color, they will appear pink because cell holds the pink color. Some cell have outer covering
made up of a chemical which has affinity for blue's color. So it will hold the blue color. So when you color the bacterial cell, some appear pink, some appear blue. The pink one are gram negative and the blue one are gram positive. Right? This differential staining technique, शब्द को समझ रहे हो ना? दो सेल में डिफरेंस करने वाला differential staining technique was developed by Gram. This differential staining technique was developed by Gram, hence it is called Gram stain. Okay, इसके और डिटेल्स है, हम रिवीजन में नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर जब सीखेंगे तो फिर से बताऊंगी मैं. ओके, सो राइट डाउन सेल वॉल के फंक्शंस लिख लिया आपने. राइट डाउन पॉइंट. साइंटिस्ट ग्राम, GRAM, scientist Gram developed a technique of staining cells, of staining मतलब कलर देना, of staining cells on the basis of their cell wall chemistry. Full stop. This differential staining technique is called Gram staining. This differential staining technique is called Gram staining. Next point, by using this technique, by using Gram staining, the cells which are stained blue, are Gram positive, and the cells which are stained pink are called Gram negative. Blue Gram positive, pink Gram negative. Next point, generally disease causing bacteria oblique pathogen, disease causing organisms are pathogen, right? Pathogenic bacteria oblique pathogenic, pathogenic bacteria are Gram negative. Generally, disease causing bacteria are Gram negative. Got the working of cell wall, right? Then write down next one, plasma membrane. Lipoproteinous with some peculiar chemicals. थोड़े प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी अलग केमिकल होते हैं. Lipoproteinous with peculiar chemical, leaving selectively permeable, covering of cytoplasm. Function, isolation,
मीडिया से सेल को आइसोलेट करेगा। सिलेक्टिव परमियाबिलिटी helps to maintain homeostasis. Selective permeability helps to maintain homeostasis. Right? Chalo, write down next one. Mesosome. हेल्प इन फंक्शन लिख रहे हैं हम, स्ट्रक्चर तो हमारे डायग्राम में है, एक्सप्लेनेशन में है। लिखना है एक शब्द लिख लो, मेसोसोम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मेसोसोम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दे आर finger-like appendages. They are finger-like appendages. Oblique inward foldings. Oblique inward foldings of plasma membrane. Inward folding of plasma membrane. Full stop. Some mesosome help in aerobic respiration. Aerobic respiration. Some help in cell wall formation. Cell wall formation. DNA replication. DNA replication and distribution to daughter cells. DNA replication and distribution to daughter cells. Secretion. Help in secretion. And increase surface area of plasma membrane. इन कौन से भी फोल्डिंग्स है तो सरफेस एरिया बढ़ता ही है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो केमिकल रिएक्शन के लिए ज्यादा जगह मिलती है। हेल्प इन, लास्ट पॉइंट, हेल्प इन इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन राइट डाउन, क्रोमैटोफोर्स। Chromatophores are finger-like appendage or vesicular, vesicle जैसा गोल, vesicular और tubular। ये ऐसे स्ट्रक्चर मेसोसोम के लिए भी हो सकते हैं। इट मे बी फिंगर लाइक, इट मे बी वेसिकुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्रोमैटोफोर आर फिंगर लाइक appendage, vesicular tubular structure with photosynthetic pigments. Help in photosynthesis. Help in photosynthesis. Next point, flagella. Flagella with three parts: basal body, hook, filament. Basal body, hook, filament. Full stop. Continue करो. Prokaryotic flagella don't show
Prokaryotic flagella don't show 9+2 arrangement. Don't show 9+2 arrangement. Next one, pili. Write down next one, pili. Right? Okay, so आपके डायग्राम में जो आपने होमवर्क किया है ना कल, आपने होमवर्क किया है ना और 2-3 डायग्राम ड्रॉ किए ना आपने. सो ये और 2-3 डायग्राम जो आपने ड्रॉ किए उसमें आप ये एडिशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो. ये ऐसा आउटग्रोथ रहेगा. It will be outgrowth like this. Right? These are called pili. Pili. Help in pili is hair-like outgrowth. Help in conjugation. Oblique primitive sexual reproduction like process. Conjugation, primitive sexual reproduction like process. अब ये क्या है? एनसीईआरटी में शब्द भी नहीं है तो हम ऑब्वियसली रिवीजन में डिटेल में सीखेंगे. ओके, ड्रॉ वन मोर स्ट्रक्चर, फिम्ब्रेई. राइट, सो देखो यहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूं. सो सम हैव attachment like this. See, are you getting that? Some part have attachment like this. इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा इसके पास. फिंगर लाइक अपेंडेजेस आउटवर्ड. राइट, ओके. सो ये जो है इसको हम बोलेंगे फिम्ब्रेई. ओके, ड्रॉ कर लो. फिम्ब्रेई ड्रॉ करो. सेकंड वाले डायग्राम को, एक ही डायग्राम में बहुत ज्यादा हो जाएगा. फिम्ब्रेई, फिम्ब्रेई are filamentous outgrowth. Fimbriae are filamentous outgrowth for attachment to support. मतलब ये सेल को समझ लो, ये सरफेस को अटैच करके रखना है. ओके, इस स्ट्रक्चर को आपके सरफेस को अटैच करके रखना है. तो ये फिम्ब्रेई इसको पकड़ के रखेगा. इट इज लाइक होल्ड फास्ट. इट इज लाइक योर वैक्यूम पैड. राइट, ओके. सो फिम्ब्रेई is working like hold fast. Hold, HOLD, FST, पकड़ के रखना. is working like hold fast. help in holding the support. राइट, मतलब पानी में बैक्टीरिया है, उसको किसी रॉक को पकड़ के रखना है तो होल्ड फास्ट से पकड़ के रखेगा. आपका पैथोजन, कोई पैथोजन आपके बॉडी में गया, उसको थ्रोट सेल को अटैच होकर बैठना है तो वो थ्रोट सेल के फिम्ब्रेई से अटैच होगा. हेल्प इन अटैचमेंट. नाउ रिमेंबर, ये जो हमने पूरे स्ट्रक्चर देखे वो हर बैक्टीरिया में होना कंपल्सरी नहीं है. ओके, स्लाइमी लेयर है तो है, कैप्सूल है नहीं तो दोनों नहीं है, डायरेक्ट सेल वॉल ही है. कुछ बैक्टीरिया पर्टिकुलर कंडीशन पे सेल वॉल बनाएंगे, कैप्सूल बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे. दोस्त हु कांट होल्ड, उनके पास फिम्ब्रेई नहीं है. जिनको कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक प्रोसेस नहीं करना है, उसके पास पिलाए नहीं है. ओके, सो बेसिक में क्या क्या आएगा?
सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, राइट? ओके, अगर अनेरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो उसके पास मेसोसोम नहीं है। अगर वो हेटेरोट्रॉपिक है, खुद का फूड नहीं बनाता, तो उसके पास क्रोमैटोफोर नहीं है। सो वी आर डिस्कसिंग ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर which are found in variety of bacteria. All the structures are not compulsorily present in one bacteria. समझ रहे हो ना? Right? So लिख लिया, Fimbriae are working like hold fast. Okay? Then write down next one. Plasmids. Write down प्लाज्मिड। लिखो उसके आगे स्मॉल ds सर्कुलर डीएनए, स्मॉल ds सर्कुलर डीएनए, कॉमा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए present in cytoplasm. Next point, it is not essential for survival of bacteria. It is not essential for survival of bacteria. It has this DNA has some additional information like ability to degrade antibiotic, in the bracket write down antibiotic resistant plasmid. Antibiotic resistant plasmid, bracket close. Second point, उसमें लिखो some plasmid have ability to cause disease. कुछ प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है। देखो, डिजीज प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए के पास नहीं है। डिजीज प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन इसके पास है। मतलब ये प्लाज्मिड अगर बैक्टीरिया के पास है तो वो डिजीज कॉज करेगा। अगर ये प्लाज्मिड नहीं है तो वो विदाउट प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं कर सकता। डिजीज कॉजिंग प्लाज्मिड इन द ब्रैकेट राइट डाउन, ऐसा लिखेंगे आप TI plasmid, antibiotic resistant plasmid, right? Antibiotic resistant plasmid, TI plasmid, right? Pili formation, next one लिखो, इसके आगे कॉमा देके some plasmids have ability for formation of pili, ability to form pili. Some plasmid have ability to form pili. For conjugation उसको बोलते हैं F plasmid. उसको बोलते हैं F plasmid. राइट? सो प्लाज्मिड के प्रकार लिख लिए ना, चेक करो एक बार। प्लाज्मिड, DS circular, small DNA, extra chromosomal DNA have information not essential for life. They are of different types. Antibiotic resistant plasmid, TI plasmid for causing some disease. Then F plasmid has ability to form pili. Right? So there are variety of plasmids. बराबर? एक बैक्टीरिया के अंदर 2, 4, 5, 10 प्रकार के प्लाज्मिड हो सकते हैं। उनका नंबर, okay, write down, plasmid may be
1 to thousands। एक सेल के अंदर प्लाज्मिड का नंबर 1 से thousands तक हो सकता है। इन अ सेल प्लाज्मिड में भी 1 to thousands। Okay, but remember it is not essential for life। ये जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी नहीं है। अगर ये है तो बैक्टीरिया के पास एडिशनल फीचर आएगा, बराबर, राइट? ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात, दिस प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। दिस प्लाज्मिड कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। ओके, सो सी, ये सेल के पास प्लाज्मिड है, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है। This is another bacterial cell. It is its DS circular DNA, main chromosomal DNA. Right? It is nucleoid. Okay? अब क्या होता है पता है? ये सेल की प्लाज्मिड ये सेल से निकल के ये सेल के अंदर जाएगी। Plasmid can transfer from one cell to other cell. It was not initially present. पहले ये बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं थी। जस्ट इमेजिन, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है। ये कौन सी प्लाज्मिड है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ओके, ये बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है, सो द बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। दिस बैक्टीरिया डजंट हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, सो इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। इट कैन नॉट detoxify, it cannot deteriorate the antibiotic, and this bacteria will be killed by the antibiotic. But what happened? Because of unique ability of the plasmid, plasmid के पास जो एक यूनिक क्षमता है, उसकी वजह से ये प्लाज्मिड एक सेल से दूसरे सेल में चली गई। यहां पे जाके उसने अपने मल्टीपल कॉपीज बनाए। Plasmid from one cell get transferred to other cell and it forms multiple copies. Now listen, this plasmid has ability to resist the antibiotic. Okay, so because of presence of plasmid, now the bacteria become resistant to plasmid. समझ रहे हो? So देखो, ये बैक्टीरिया के पास जब प्लाज्मिड नहीं था तो वो एंटीबायोटिक से मर जाता था। अब प्लाज्मिड आ गया तो वो एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा, वो एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। सो इजंट इट, बैक्टीरिया में बदलाव आया। बदलाव इज, यू नो द वर्ड चेंज, बट रिमेंबर चेंज कैन बी टेम्पररी। परमानेंट चेंज के लिए एक शब्द है जो ये प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। Permanent change. Antibiotic resistant plasmid from one cell get transferred to other bacterial cell and other bacterial cell become resistant to antibiotic permanently because it is having the DNA which has information to degrade the antibiotic. ये बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड आया, प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक को डिग्रेड करने की इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन यूज करके उसने एंटीबायोटिक को तोड़ दिया। तो वो एंटीबायोटिक अब ये बैक्टीरिया को मार नहीं सकेगा। राइट? ये एंटीबायोटिक अब ये ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया को मार नहीं सकेगा। इजंट इट, बैक्टीरिया में परमानेंट चेंज आ गया। दिस परमानेंट चेंज इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्लाज्मिड हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन। राइट डाउन। Plasmid has unique ability. Plasmid has unique ability to transfer from one cell to another or introduce itself into new cell. एक सेल से दूसरे सेल में जाएगी या मीडिया से प्लाज्मिड सेल के अंदर घुसेगी। प्लाज्मिड हैज यूनिक एबिलिटी टू ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अदर एंड इंट्रोड्यूस इटसेल्फ
introduce itself in new cell. Full stop. Because of this, the bacteria gains new abilities, new characters, and permanently changed. That is ट्रांसफॉर्मेशन. वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन. इज दैट ओके? सो आज हमने पूरे एक स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन लिखे, कुछ थोड़े आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट भी मैंने आज आपको सिखाया, राइट? ओके, अब आप एनसीईआरटी पूरा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ सकते हो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा रिवाइज करके एनसीईआरटी पढ़ के दिखाऊंगी, राइट? सो प्लीज रीड इट. आपके डाउट सर्कल करके रखो, मुझे ग्रुप पे पोस्ट करो कि मैम प्रोकैरियोटिक सेल में ये रिवीजन, मतलब जो मैं पढ़ूंगी तो आपने और एक बार डिटेल में बताने हैं. ओके, देन आई रिवाइज. ओके, सो लर्न टू पिंच आउट डाउट्स. ये प्रोसेस में आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, ओके, वो डाउट्स आपने सेपरेट करने हैं. ग्रुप पे मैसेज डालो या मुझे पर्सनल पे डालो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, जब मैं रिवाइज करके दूंगी तो ये पॉइंट्स फिर से हाईलाइट करूंगी. Isn't it developing communication between you and me? Okay, so done. Draw on this diagram. ट्रांसफॉर्मेशन का ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लो. और आज जो मैंने पॉइंट डिक्टेट किए हैं वो फंक्शंस है, अच्छे से रट्टा मारेंगे. राइट? See you then.